કરીએ તો રાજકોટ રિજનની પણ વાત કરું તો પહેલાનો શેર અને અત્યારનો શેર ખૂબ જ ફરક છે. મતલબ કે પહેલાના શેરની અંદર જે એગ્રેશન હોવું જોઈતું તે અત્યારે નથી, બટ અત્યારના શેરની વાત કરું, અત્યારના સિંહની વાત કરું, રાજકોટના શેરોની વાત કરું તો અત્યારનો શેર એગ્રેશન વાળો છે. બટ આ એગ્રેશન આપણે આપણા વર્કમાં લાવવાનું છે. આની સાથે જ આપણે આગળ જોઈએ તો બીજું રીજન છે આપણું અહેમદાબાદ રીજન. અહેમદાબાદ રીજનના લોગોની વાત કરું તો એ છે લોગો આપણો ચિત્તો. મતલબ કે ચીતા પણ અત્યારે આપણો જે પહેલાના ચીતાની વાત કરું અને અત્યારના ચીતાની વાત કરું તો અત્યારનો જે ચીતો છે એ પણ આપણો એગ્રેશન વાળો છે. મતલબ કે આપણે આપણા વર્કમાં એગ્રેશન લાવીને આ 750 કરોડમાંથી આપણે આપણા સેન્ટ્રલ વેસ્ટ ઝોનમાં ઓછામાં ઓછા 150 કરોડનું ટર્નઓવર આ ફાઇનાન્શિયલ એન્ડ સુધીમાં આપણે પ્લાન કરી રહ્યા છીએ. આની સાથે સાથે વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ આપણું રીજન છે સુરત રીજન. અને સુરત રીજનનો લોગોની પણ વાત કરીએ તો કોબરા, કે જે અત્યારે એગ્રેશન સાથે ફૂલ ટુ એગ્રેશન સાથે અને લાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર થી જેણે પોતાનું એગ્રેશન પણ દેખાવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. હવે વાત કરીએ આ લોગોની સાથે સાથે આ રીજનને આ હેન્ડલ કોણ કરશે, આ રીજનનું પરફોર્મન્સ કોણ જોશે, આ રીજનને મેનેજમેન્ટ કોણ કરશે, તો ઓન રિકમેન્ડ ઓન પબ્લિક ડિમાન્ડ સ્પેશિયલી આપણા રાજકોટ રીજન માટે ફરીથી આપણી સાથે આવી રહ્યા છે આપણા પરાગ ભટ્ટ સર, કે જે આ રાજકોટ રીજનને સંભાળશે, કે જેને એક કંપનીના એક લેવલ સુધી આ રાજકોટ રીજનને પહોંચાડ્યું. એવી જ જિમ્મેદારી પાછી નેટસફ આજે એમને આપવા જઈ રહી છે. અને આની સાથે સાથે એમની સાથે આપણા કંપનીના ઓસીએમ મિસ્ટર અજય વાટકર સર, કે જેઓ એઝ અ રિજનલ ઓસીએમ તરીકે ત્યાં એમની મતલબ કે ત્યાં એમનું આપણે મદદ રહેશે. આની સાથે સાથે અહેમદાબાદ રીજનમાં આપણા રિજનલ હેડ મિસ્ટર યોગેશ બારોટ સર, કે જે આ રીજનની રિસ્પોન્સિબિલિટી સંભાળશે. અને સાથે સાથે જ આપણા રવિકાંત ભેંડકર સર, કે એઝ અ રિજનલ ઓસીએમ તરીકે સંભાળશે. આની સાથે સાથે આગળ વાત કરીએ તો સુરત રીજન, કે જ્યાં પ્રતિક દેસાઈ સર, જેમણે સુરત રીજન પર પોતાની ખૂબ સારી પકડ રાખી છે, અને સાથે સાથે ત્યાંના જ ઓસીએમ અને આપણા સુરતના જ ઓસીએમ મિસ્ટર દિનેશભાઈ ભેસાણિયા, કે જેઓ સુરત રીજનની રિસ્પોન્સિબિલિટી સંભાળશે. મતલબ તમે જોઈ શકો છો કે આ ત્રણેય રીજનના જે રિજનલ હેડ અને રિજનલ ઓસીએમ છે એ બધાનું કોમ્બિનેશન, એ બધાનું ટ્યુનઅપ એ પોતપોતાના મેનેજર સાથે ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ છે. અને આની સાથે સાથે વાત કરીએ તો સેન્ટ્રલ વેસ્ટના ઝોનલ હેડ તરીકે કંપનીએ મને એક પોઝિશન્સ આપી છે. તો મારું પણ એક કમિટમેન્ટ રહેશે કે આ ત્રણેય રીજનની અંદર જે પણ ડેવલપમેન્ટ થશે રિજનલ મેનેજરની સાથે સાથે મારો પણ એટલો જ સહભાગ, એટલો જ સહયોગ ત્યાં રહેશે. અને આજે એક વસ્તુ કહેતા ગર્વ થાય છે કે તમારા દરેક લોકોના માધ્યમથી, તમારા દરેક લોકોના સપોર્ટથી આજે ટર્નઓવર ઉપર છે, આજે ગુજરાત નંબર 1 ના ટર્નઓવર પર છે લાસ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં. તો આ જ વસ્તુને આપણે જે આપણા ક્લસ્ટર મેનેજર છે એમના સહભાગથી, એમના સપોર્ટથી પણ આપણે આપણા ગુજરાતને, સેન્ટ્રલ વેસ્ટ ઝોનને નેટસફમાં નંબર 1 ટર્નઓવર વાઇઝ કઈ રીતે રહે એની સાથે આપણે કેવિન સરની પણ અહીં હેલ્પ લેવાના છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, એક વ્યક્તિ, એક શખ્સ કે જેણે આ ઝોનની અંદર કેપની શરૂઆત કરી, જેણે આ ઝોનની અંદર એક કેપની લોકોને દેખાડી. મતલબ કે જ્યારથી આ નેટસફના ઝોનની શરૂઆત થઈ અને જેમણે આ ઝોનની અંદર સૌથી પહેલા એક કેપની શરૂઆત કરી, અને સાથે સાથે આપણા નેટસફના ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ સેલર, કે જ્યાંથી નેટસફ નેટવર્કની શરૂઆત થઈ, તેવા ધ્યાનેશ્વર દહીતુલે સર એઝ અ ઝોનલ ઓસીએમ તરીકે આપણી સાથે કામ કરશે. મતલબ કે તમે જોઈ શકો છો અજય વાટકર સર, કે જેમની પાસે બેઝિક નોલેજ, એ ક્યારેય બેઝિક છોડતા નથી. રવિકાંત ભેંકર સર, કે જેમની પાસે કેલ્ક્યુલેશન્સનું પ્રોપર પ્લાનિંગ હોય છે. અને સાથે સાથે દિનેશભાઈ ભેસાણિયા સર, કે જેઓ ક્યારે અચીવમેન્ટમાં બધાને પકડીને જેમની પાસે અચીવમેન્ટ ઉપર જેમની પકડ છે. અને યસ, આપણા ધ્યાનેશ્વર દહીતુલે સર, કે જેઓ આપણે દરેક પ્રોગ્રામને એક સારું, મતલબ કે કોઈ પણ લોન્ચિંગ હોય, કોઈ પણ લોન્ચિંગ હોય ત્યાં આપણે ધ્યાનેશ્વર દહીતુલે સરનું ખૂબ જ સારું રીતે ઉપયોગ કરી શકે. મતલબ કે પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન આપણા ઝોનની અંદર આજે ઉપલબ્ધ છે. અને આ જ વસ્તુને આગળ લઈ જતા જેવી રીતે આપણે 750 કરોડનું ટર્નઓવર હિટ કરવું છે, તો એને જ લઈને નેટસફે પણ ઘણા બધા ધમાકા આ ક્વાર્ટર 1 માં આપ્યા છે.
મતલબ કે આ ક્વાર્ટર 1 માં નેટસર્ફે શરૂઆત કરી દીધી છે કે આ ક્વાર્ટર 1 માં જ નેટસર્ફ ઓલમોસ્ટ એક સારું એવું ટર્નઓવર અચીવ કરશે અને આ જ ટર્નઓવરને લઈને સેન્ટ્રલ વેસ્ટ ઝોને પણ પોતાના પ્રોગ્રામની આજથી શરૂઆત કરી દીધી છે. તો યસ, વધારે ટાઈમ નહીં લેતા હવે હું આપ દરેકની વચ્ચે આપણા ઝોનલ ઓસીએમ મિસ્ટર ધ્યાનેશ્વર દહીતુલે સરને આ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર સ્વાગત કરવા આપ દરેકના તાળી અને ગડગડાટથી એમનું વેલકમિંગ કરીશું. પ્લીઝ વેલકમ ઓન ધ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ મિસ્ટર ધ્યાનેશ્વર દહીતુલે સર. જોરદાર તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરશું. थैंक यू फेनिल सर. दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सब लोगों की सेवा में मैं फिर से एक बार गुजरात में आया हूं. तो ये जो साल है 2021 इसमें हम लोग थोड़ा हटके कुछ ऐसा प्लानिंग करते, कुछ ऐसा काम करते कि जैसे लगातार हमारा गुजरात जो है कंटिन्यूअसली 1 नंबर पे रहा है, लेकिन अभी जो है ये थोड़ी कांटे की टक्कर जिसे हम बोलते हैं, ये अभी कांटे की टक्कर होने जा रही है क्योंकि हमारे साथ हमें फाइट करने के लिए अभी काफी अलग अलग रीजन और काफी अलग बाकी जोन जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से वो भी अभी ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं. तो ये जो साल है, ये साल हमने पिछले 3 साल में जो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड बनाया हाईएस्ट टर्नओवर का, अचीवर्स का, तो इसे हमें बरकरार रखना है और ये सारी जिम्मेदारी हम सब लोग मिलके इस साल यहाँ पे हम लोग 100% करेंगे, जिसके लिए सभी रथी महारथी लोग अभी साथ में है और आप लोगों का साथ है तो मुझे लगता है कि कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है. तो ठीक है, चलो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछला जो साल रहा है हमारा, तो पिछले साल कोरोना की वजह से पूरी दुनिया, हमें सबको पता है कि पूरी दुनिया परेशान हो गई थी. क्या करे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ऐसे सिचुएशन में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ये डेवलपमेंट के बजाय सर्वाइवल के मूड में चले गए थे. मतलब सबके दिमाग में ये था कि इस साल अपने आप को बचा लो, अगले साल जो भी डेवलपमेंट करना है करेंगे. मतलब सब पूरी दुनिया जो है सर्वाइवल के मूड में चली गई. तो ऐसे सिचुएशन में नेटसर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है दोस्तों कि जिसने पिछले साल 100 दिनों में 100 करोड़ का रिकॉर्ड जो है कोरोना में बनाया. मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि हम सब लोगों को पता है कि फोर्ब्स मतलब दुनिया का सबसे एक ऐसा जाना माना मैगजीन है जो पूरी दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट 100 रिचेस्ट लोग कौन है इसके बारे में सर्वे करके नाम डिक्लेयर करता है, उसी पूरी दुनिया मानती है. मतलब फोर्ब्स मैगजीन जो है बहुत ही रिलायबल मैगजीन है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है. और उसी मैगजीन ने पिछले साल जैसे 100 रिचेस्ट लोग बने, उसी के साथ साथ 100 दुनिया में ऐसी कौन सी बढ़िया बातें हुई है, ये भी वो मैगजीन वहां पे उनके मैगजीन में आता है. और कहने के लिए बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है कि फोर्ब्स मैगजीन ने सर्वे किया कि पूरी दुनिया परेशान है, सब लोग डेवलपमेंट के वजह सर्वाइवल में, लेकिन इंडिया में एक कंपनी ऐसी है कि जिसने 100 दिनों में 100 करोड़ का रिकॉर्ड किया है. तो दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन ने भी हमारे नेटसर्फ को सराहा है. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है. तो मैं चाहूंगा हमारे नेटसर्फ के लिए सबसे पहले एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, एक जोरदार ताली हो जाए. दोस्तों, जनवरी की अगर बात करें तो जिस जनवरी में मतलब 3 महीने पहले की सेकंड साइकिल में हमने 15 दिन में 40 करोड़ का टर्नओवर किया. मार्च के सेकंड साइकिल में 15 दिन में हमने लगभग 62 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. अभी टोटल उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे पास लगभग 68 ऐसे लोग हैं जो कैप लगाते हैं. मतलब 15 दिन का 8-19-250 कमाने वाले 68 लोग आज हमारे पास है. तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड 68 लोगों का, ये भी इस साल एक रिकॉर्ड बन चुका है क्योंकि अभी तक की नेटसर्फ की हिस्ट्री में इतने सारे लोग एट ए टाइम कैप लगाने वाले पहली बार हुआ है. दूसरी एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले साल हम लोगों ने 2021 में जो टारगेट अचीव किया है, जैसे अभी फिनिल सर ने बताया 412 करोड़ रुपए का टारगेट हमने अचीव किया है, जिसके माध्यम से नेटवर्क में मतलब आपके हमारे जैसे लोगों में लगभग दोस्तों 225 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. मतलब पिछले साल सोचो कितने सारे लोग लखपति बने हैं, कितने सारे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, जबकि हमारा 412 करोड़ का टर्नओवर हुआ है. तो 412 करोड़ में अगर 225 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोस्तों इस साल तो हमारा प्लानिंग जो है बहुत ही तगड़ा प्लानिंग है. नेटसर्फ ने जो प्लानिंग किया है 2021-22 में हम लोग 750 करोड़ किसी भी हाल में पूरा करेंगे. 750 करोड़. और दोस्तों, आप सब लोगों को पता है नेटसर्फ का आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी नेटसर्फ को एक आधी बात डिसाइड करता है कि हमें ये करना है तो उसे 101% कंप्लीट करके ही रहता है. तो इस साल 750 करोड़ का अगर हम टर्नओवर करेंगे तो सिंपल सी बात है
लगभग 410 करोड़ रुपया नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। 410 करोड़ रुपया। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। 3 दिन पहले हम सब लोग अभी हैदराबाद में थे, जहां पे ऑल ओवर इंडिया का रेसिडेंशियल एमसीएम चल रहा था। उस समय पे जिस हिसाब से लोगों ने टारगेट्स दिए हैं, उस समय जिस हिसाब से लोगों का मोटिवेशन, लोगों का प्लानिंग, एक्टिवेशन वगैरह पूरा 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 जिस हिसाब से ये आने वाला साल जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 750 करोड़, शायद हम लोग 1000 करोड़ इसी साल में क्रॉस करने वाले हैं। 1000 करोड़। और दोस्तों, और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। नेटसप ने रिसेंटली एक ऐसा टूल लॉन्च कर दिया है, ऐसा जबरदस्त टूल लॉन्च किया है कि एक अकेला वो टूल जिसका नाम है ई टेलर, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। एक अकेला टूल हमारा 750 करोड़ बेच सकता है। तो मतलब इस साल में 2021-22 में बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। चलो देखते हैं, 750 के हिसाब से भी जाते हैं तो भी 410 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मतलब इस साल कितने सारे लोग होंगे जो लाखों रुपया कमाने वाले हैं, कितने सारे लोग होंगे जो करोड़ों रुपया कमाने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अगर इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, नेटसप अगर इतना पैसा बांटने वाला है, तो सिंपल सा सवाल है, हमें अपने आप से पूछना है कि भैया नेटसप इतना दे रहा है, मेरा खुद का शेयर कितना, मुझे कितना चाहिए। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने नहीं कमाया तो बाजू वाला कोई कमाने वाला है, क्योंकि टर्नओवर आया तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होने वाला है। तो ये जो साल है, ये साल पैसे कमाने का, मतलब पैसे छापने का साल है। तो इस साल हमें थोड़ा सीरियसली प्लानिंग करना पड़ेगा। इस साल हमें और सीरियसली थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। दोस्तों, रवि हमेशा सर, मेरा एक सवाल रहता है हर ट्रेनिंग ज्ञानेश्वर प्रोग्राम सर, में। मैं सर सर हाँ सर। सर हाँ आपका बोलिए। वीडियो ऑफ है। हाँ, अभी आ गया, चालू अभी है आ ना गया, अभी आ गया, अभी आ गया। अच्छा, ये कुछ अलग चल रहा था शायद ही। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिख रहा है वीडियो? हाँ, अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। वो कुछ तो भी उसके ऊपर टेक्निकल इशू है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सवाल तो मैं हमेशा पूछता हूँ। वो सवाल ये है कि व्हाई यू आर इन नेटसप, आप नेटसप में क्यों आए हो। तो सिंपल सी बात है, हम सब लोग नेटसप में इसलिए आए हैं कि हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, हमें हमारी जरूरतें पूरी करनी है। कई सारे सपने हमने बचपन से भी देखे, आज भी देखते हैं। मेरा बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, फॉरेन टूर जाना है, कई सारे सपने हम लोग देखते हैं। और ये सारे सपने पूरे करने के लिए दोस्तों, अभी दिख रहा है ना सर, बराबर चल रहा है ना? सर वापस ऑफ हुआ है, सर वापस ऑफ हुआ वीडियो। ऑफ हाँ, हुआ वापस है क्या? चालू हो क्या गया, हो रहा चालू हुआ, है? अभी चल रहा है क्या बराबर? चल रहा है, लेकिन कुछ बट ब्रेक हो रहा है सर आपका, जस्ट वीडियो ब्रेक हो रहा एक है। मिनट, क्या अभी तक नहीं हुआ था? एक काम करता हूँ, मैं शेयरिंग स्टॉप करके फिर से एक बार लेता हूँ, स्टॉप करता हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, फिर से मैं ओके। उसको शेयर करता हूँ। आ रहा है सर अभी? यस, यस सर। हाँ, परफेक्ट, ओके, आ रहा है। चलो, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो, तो दोस्तों, हम लोग नेटसप में आए किस लिए? आने के पीछे हमारा एक ही इंटेंशन है कि हमें क्या करना है। तो हमें हमारे सारे सपने जो भी बचपन से हमने देखे, आज हम लोग देख रहे हैं, सारे पूरे करने हैं। और ये सारे सपने अगर इकट्ठा किया जाए, इक्वल टू किया जाए, तो इसे कहते हैं हम लोग आए करियर करने के लिए। करियर मतलब आज हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक समय ऐसा आना चाहिए कि हम लोग आगे भाग रहे हो, पैसा हमारे पीछे, और करियर करना है। तो इसके लिए दोस्तों, नेटसप ने हमें करियर करने के लिए, हमें हमारे पूरे सपने करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल दिया है, जिसका नाम है पाथ फाइंडर। इस पाथ फाइंडर टूल में हमारे पास यहाँ पे कई सारे अलग अलग टूल्स जो है, जो हमें नेटसप ने यहाँ पे दिए हैं। जैसे अस्मिता हो, नेटवर्क प्रॉब्लम है सक्षम सर, है। तो फिर से प्रॉब्लम है अभी, एक मतलब मिनट। वापस से आपका वीडियो ऑफ हो गया सर। मतलब पीपीटी चल रहा है मेरा? पीपीटी चल रहा है, मेरा वीडियो बंद है क्या? वीडियो बंद हो रहा है बार बार। वीडियो जाने दो, ये चल रहा, पीपीटी चल रहा है ना? चल रहा है, चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी अभी तक कभी नहीं हुआ था।
एक मिनट, किसी ने सिक्योरिटी में कुछ किया है क्या, दिखता हूँ। ठीक है चलो, पीपीटी तो देख रहे हैं, पीपीटी समझ में आ रहा है ना सब कुछ। यस 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 ठीक है चलो। यस यस। हाँ, चलो। वैसे भी मैं ज्यादा देखने लायक चीज हूँ नहीं तो पहले पीपीटी देख लेते हैं। ठीक है चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि नेटसप में आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टूल्स नेटसप ने हमें दिए हैं, जिसमें जैसे हमारे पास है अस्मिता है, सक्षम जैसा टूल है, क्लब नेटसप है, फास्ट ट्रैक है, आइकॉन है, मिशन कैप है, नेटसप एवरीडे। ये हर एक टूल में इतनी ताकत है कि एक अकेला टूल हमें हमारे करियर को 100% कंप्लीट करने में भी सक्षमता, मतलब उसमें ताकत रखता है। हर एक टूल में वो ताकत है। चलो देखते हैं इसमें सबसे पहला अगर हमारा टूल कोई है तो दैट इज सक्षम और अस्मिता। हम सबको पता है कि पिछले साल हम लोगों ने जो 412 करोड़ का टारगेट किया है ना दोस्तों, ये 412 करोड़ का टारगेट करने में सबसे अहम रोल अगर किसी टूल का रहा है तो वो रहा है सक्षम और अस्मिता का। ये आज की तारीख में नेटसप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। इस टूल की वजह से, मतलब ये टूल इतना स्ट्रांग है कि इस टूल के माध्यम से हम 10 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला, 200 मंजिला तक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। मतलब देश सबका ग्रोथ जितना चाहे उतना ऊंचाई तक लेके जाने की ताकत दोस्तों इस अकेले टूल में, जिसका नाम है सक्षम और अस्मिता। और सक्षम अस्मिता के बारे में हम सबको पता है कि हमें लेफ्ट साइड से 25, राइट साइड पे 25 अगर करते तो हमारा L1 कंप्लीट हुआ, लेफ्ट साइड 50, राइट साइड 50 कर दिया तो हमारा L2 हो गया। और ये L1 और L2, ये जो सक्षम अस्मिता का जो टूल है, इसमें नेटसप ने हमें कुछ ऑफर्स दिए थे। हम सबको पता है जनवरी से ये ऑफर्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं कि अगर मैं मेरा 25-25 हजार का लेफ्ट राइट 25-25 अगर मैं मेरा L1 कंप्लीट करता हूं और उसके बाद हर महीने जब जब मैं रिपीट करूं तो हर महीना मुझे 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा होते रहेंगे। और जैसे ही जुलाई में मैं फास्ट ट्रैक में एंट्री करता हूं तो जुलाई के फास्ट ट्रैक का जो सेकंड साइकिल का पे आउट है, इसमें जितने महीने मैंने रिपीट किए, समझो मैं सक्षम अस्मिता में आया और उसके बाद 4 महीना रिपीट किया तो 2,000 गुणिले 4 8,000 रुपए जुलाई के पे आउट में मेरे जमा हो जाएंगे। वैसे ही हमारा है L2 के लिए, हर महीना जैसे हम L2 में एंट्री करते हैं तो हर महीना 3-3 हजार रुपए हमें मिलते रहेंगे। जितनी बार हम रिपीट करेंगे इंटू 3,000 जुलाई के सेकंड साइकिल के पे आउट में हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो सक्षम अस्मिता का टूल है, जो जनवरी से, मतलब एक कब से हमारा चालू है लेकिन जनवरी से नेटसप ने हमें ऑफर दिया, ये ऑफर अभी भी हमारे पास अप्रैल में और जून अगले 3 महीने के लिए ये ऑफर हमारा कंटिन्यू रहने वाला है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमें उठाना है उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई के बाद ये जो सक्षम अस्मिता जो टूल है ये अभी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब ये अभी नए रूप में आ रहा है, इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटसप बना रहा है, इसको और इतना जबरदस्त बना रहा है कि सक्षम अस्मिता में हमारा नया जो भी बंदा अंदर आएगा उसे इतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इतने ज्यादा कुछ कुछ फायदे उसे मिलने वाले हैं कि जिसके माध्यम से वो स्पीड में आगे बढ़े। मतलब ये जो सक्षम अस्मिता है जो हमारा अभी चल रहा है जून एंड तक इसी हिसाब से रहेगा, जुलाई से ये नए रूप में आएगा। एक बात हमेशा थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है दोस्तों, हमारे सुजीत सर हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारा जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना कोई भी, उसके चेहरे पे अगर खुशी आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई आता है उसका छोटा छोटा भी सपना पूरा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक टूल में इस हिसाब से इस साल एनहांसमेंट किया है कि जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो डेवलपमेंट है स्पीड में आगे जाने के लिए हमें कंटिन्यूअसली हर एक टूल सपोर्ट करने वाला है। तो जैसे मैंने कहा कि जुलाई में ये सक्षम अस्मिता नया रूप लेकर फिर से जन्म लेने वाला। और एक चीज जिसके बारे में बोलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सबको पता है कि जनवरी फरवरी मार्च के लिए नेटसप ने हमें क्लब नेटसप के माध्यम से फ्लाई हाई दुबई का एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया था जो अभी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मार्च में ये ऑफर हमारा चला गया। अभी हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट करने के बारे में कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन शायद वो लोग अचीव नहीं कर पाए। अगर उसके बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों तो आज की तारीख में लाखों लोगों ने कोशिश की लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2278 लोग जो है वही लोग ये दुबई का जो क्लब नेटसप का जो हमारा ऑफर है, ये दुबई का जो हमारा रेस है वो अचीव कर पाए 2278 लोग। मतलब 1 लाख लोगों ने अगर कोशिश की है तो 2278 लोगों ने अचीव किया। इसका मतलब क्या हुआ
तो लगभग 10% लोगों ने अचीव किया है। 90% लोग आज भी ऐसे हैं कि जिन्होंने कोशिश की या शायद बहुत सारी मेहनत की या शायद कुछ ना कुछ तो कारण था जिसकी वजह से शायद उनका अचीवमेंट नहीं हो पाया, अचीवमेंट नहीं हो पाया। इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो दोस्तों कभी-कभी छोटी-सी भी गलती कितना बड़ा नुकसान करती है। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा, कई सारे लोगों का इसमें से जो लाखों लोगों में से आज 2278 लोगों ने अचीव किया है, तो इतने सारे लोग जो है ये अचीवमेंट से छूट गए। तो इसके बारे में जब स्टडी किया गया, तो दोस्तों एक छोटा-सा फिगर सामने आया, वो फिगर है 10,689 मतलब लगभग 10,700 के आसपास लोग ऐसे हैं, एक छोटे-छोटे अमाउंट की वजह से वो लोग टारगेट अचीव करते-करते रह गए। मतलब किसी का ₹250 की वजह से दुबई रह गया, किसी का ₹500 की वजह से दुबई रह गया, किसी का 1200, किसी का 1500, 2000, 5000, 10,000 के अंदर वाले कई सारे लोग इसमें हैं। तो ₹10,000 की वजह से दुबई का टारगेट रह गया। इसका मतलब एक ही है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमारी गलती है कि शायद हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया है। शायद हमारी गलती है कि हमने रेस तो अचीव किया, लेकिन उसके लिए जो रीपरचेज़, सेल्फ रीपरचेज़ करना ज़रूरी था, उसकी तरफ शायद हमने ध्यान नहीं दिया या हम लोग भूल गए और इसके चक्कर में लगभग 10,500 लोग जो है और जो दुबई अचीव कर सकते थे 100%, जो डाटा निकला है उसमें से ये लोग 100% अचीव कर सकते थे, वो दुबई अचीव करते-करते रह गए। मतलब वहाँ से देखा जाए तो 2278 वो लोग और यहाँ पे ये 10,000 लोग अगर अचीव करते तो लगभग 12,000 लोग हम लोग दुबई जाने वाले थे। तो अभी 10,000 लोगों का भी रह गया। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने ज़ोर से अचीवमेंट के बारे में काम करना शुरू किया और किसी कारणवश बाद में उन्होंने छोड़ दिया या बाद में उन्हें लगा नहीं हो सकता है या शायद उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन एंड में जाके लगा कि यार कहीं न कहीं तो थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा और समय मिलता तो अच्छा होता। मैं मेरा टारगेट पूरा करता, मुझे टाइम कम मिला। मुझे और थोड़ा टाइम मिलता तो शायद हो जाता और इसके लिए बहुत बार लोग बोलते हैं यार सेकंड चांस मिलता तो अच्छा होता, मजा आता, मैं कुछ तो करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जिंदगी भी कभी हमें दोबारा जिंदगी भी कभी हमें दोबारा मौका नहीं देती है, नहीं देती है दोबारा मौका। फिर नेटसप जो है, नेटसप के बारे में जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे सुजीत सरकार लोगों की तरफ देखने का नजरिया किस हिसाब से है, कैसे देखते हैं, तो उस हिसाब से नेटसप का जब ये डाटा सामने आया तो हमारे सुजीत सर ने सोचा ये 10,000 लोग जो बॉटम मतलब बहुत नजदीक आके कहीं ना कहीं छोटी सी गलती की वजह से या अचीव करते करते रह गए, उन लोगों के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाना तो चाहते थे लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो इन लोगों के लिए क्या हम फिर से दोबारा यही जो हमारा फ्लाई है दुबई है, ये फिर से दे सकते हैं क्या? इसके बारे में उन्होंने कैलकुलेशन किया और दोस्तों हमारे सुजीत सर ने, हमारे प्रदीप सर, केतन सर ने हमें फिर से ये अपॉर्चुनिटी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने जो दुबई किया, जिन लोगों ने अचीवमेंट किया उनका तो सवाल नहीं है, लेकिन जिन लोगों का रह गया और जो अभी नए लोग आए जिनको जाना है, तो उसके लिए नेटसप ने फिर से एक नया लॉन्चिंग किया है और ये जो नया लॉन्चिंग है फ्लाई हाई दुबई हमारे लिए अप्रैल में और जून 3 महीनों के लिए फिर से दिया है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पहले ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अप्रैल में और जून के बाद किसी भी हाल में ये जो फ्लाई हाई दुबई वाला है उसको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम सबको पता है जुलाई में हमारा फास्ट ट्रैक लॉन्च होता है, इसलिए दुबई एक्सटेंड होने वाला नहीं है। तो अभी जिनका रह गया उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ और एक बात है कि यहाँ पे जो टारगेट्स है हमारे, हम सबको पता है, हम सबको पता है कि हमारे जो टारगेट्स है, जो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च में जो टारगेट थे, वही टारगेट नेटसप ने एज इट इज अप्रैल में और जून के लिए रखे हैं। वही टारगेट। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में ये रखना है, अगर किसी ने जनवरी, फरवरी, मार्च में कोशिश की है, काम कर रहा था, उस चक्कर में उसने शायद अचीवमेंट नहीं हुआ, पैसे कमाए, तो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, जनवरी सेकंड साइकिल का आपका पे आउट आने के बाद आप कौन से क्लब में हो, ये बात ध्यान में रखना। और अप्रैल से जैसे ही ये लॉन्च हो गया है अभी, तो आप जिस क्लब में हो उस क्लब का आपका टारगेट आपको अचीव करना, मतलब टारगेट एज इट इज रखा है। जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो था Q4 का, वही Q1 में टारगेट एज इट इज रखा
है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए कि कभी भी आज तक का, मुझे इस बिजनेस में 20 साल हो चुके हैं, 21वां साल चल रही है, इतने कम टारगेट में इंटरनेशनल टूर आज तक नेटसप ने कभी भी नहीं दिया था, कभी भी नहीं दिया था। दोस्तों 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए, मतलब इधर से 12 लाख, इधर से 12 लाख करने के बाद हम लोगों के लिए इंटरनेशनल टूर रहता था, और इतने कम अमाउंट में, इतने, और वो भी पीरियड भी 3-3 महीने का, हमारे लिए तो उस टाइम पे पीरियड 2-2 महीने का रहता था। और ऐसे सिचुएशन में आज इतना पीरियड 3 महीने का, टारगेट इतना कम, फिर भी एक्सटेंशन, ये मतलब ऐसा हुआ कि सुजीत सर का बहुत ज्यादा बड़े सर चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग दुबई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये दुबई का इंटरनेशनल टूर का बेनिफिट ले, इसलिए नेटसप ने हमें अपॉर्चुनिटी फिर से दी है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो बात ये है कि कुछ लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीनों में अपना ये दुबई अचीव किया था। अभी जिन्होंने पहले अचीव कर रखा है तो उनके लिए क्या है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जाने ही वाले हैं। तो अप्रैल में और जून में ये दुबई फिर से लॉन्च हुआ, तो उनके लिए क्या है, तो नेटसप चाहता है कि ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च में दुबई अचीव किया है, उन्हें अकेले नहीं जाना है। इसलिए नेटसप ने उन्हें भी एक ऑफर दिया है कि अप्रैल में, जून में आप फिर से एक बार अचीव करो, और आप अकेले जाने के बजाय आप आपके फैमिली मेंबर को, आपके बीवी को साथ में लेके जाइए, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल टूर है जिंदगी भर के लिए बहुत ही यादगार बनने वाला है। तो यहाँ पे एक और बात देखिए, अभी तक का आप लोगों को पता है कि नेटसप जब भी फैमिली को साथ लेकर जाने के लिए जब टारगेट देता तो हमेशा 10%, 20% बढ़ा के देता है, आज तक का रिकॉर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ है, वही रिकॉर्ड फिर, जितना टारगेट था वही टारगेट रिपीट फिर से दिया है। मतलब एक बात तो एकदम क्लियर हो गई है कि नेटसप चाहता है मैक्सिमम लोगों को दुबई लेकर जाए। और दोस्तों दुबई एक ऐसी कंट्री है जो आज की तारीख में दुनिया में वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कंट्री कहा जाता है, दुनिया का एक व्यापार का हब बन चुका है। टूरिस्ट लोग पूरी दुनिया से आज दुबई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दुबई अपने आप को एक बहुत ही ऊंचाई पे लेकर गई है। तो इस ट्रिप के लिए हर पर्सन के पीछे बहुत सारा खर्चा नेटसप को आने वाला है, उसके बावजूद भी नेटसप चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अचीव करें। तो कितने लोग अचीव करेंगे, इसका जब कैलकुलेशन किया गया तो पहले तो हमारे 2278, मतलब 2300 लोग पकड़ते, 2300 लोगों ने अचीव किया है। तो ये 2300 लोग 101% अप्रैल में, जून में फिर से अचीव करेंगे, मतलब वो फैमिली के साथ आएंगे। तो वो वहां पे लगभग 4500 लोग तो वहीं पे हो गए। अब ये नए लोग जो है, नए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे टूल्स भी आ गए हैं, वातावरण जबरदस्त बन गया है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी ने जो कैलकुलेशन किया उसके माध्यम से लगभग 6500 से 7000 लोग नए दुबई अचीव करने वाले हैं। तो होगा क्या, अगर टोटल मिलाया जाए तो लगभग 10,000 से कई ज्यादा लोग, मतलब 10,000 भी पकड़ते तो बेयर मिनिमम 10,000 लोग इस साल दुबई जाने वाले हैं। और 10,000 लोग अगर दुबई जाएंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड बनने वाला है कि किसी एक कंपनी के 10,000 लोग एट ए टाइम दुबई में आ रहे हैं। और इसके लिए यहाँ 10,000 लोग जाएंगे तो रिकॉर्ड तो बनेगा। और वहां का दुबई का जो गवर्नमेंट है, टूरिज्म जो है गवर्नमेंट का, वहां का टूरिज्म है, उसने भी नेटसप को कई अलग अलग फैसिलिटीज, कई सारे अलग अलग सपोर्ट जो है वो भी डिक्लेयर किया है, जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। मतलब एक बात तो पक्की है, मैं आपको सिंपल एक छोटा सा बात में बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कुछ समय पहले गए थे जॉम्टियन में, मतलब जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा 9वें नंबर का होटल था, एम्बेसडर सिटी, जहां पे हम लोग गए थे, लगभग 2,500-3,000 लोग के आसपास हम लोग गए थे। उस समय की बात मैं कहना चाहूंगा, 3,000 लोगों को एयरपोर्ट से जॉम्टियन लेकर जाने के लिए जॉम्टियन का जो गवर्नमेंट है, वहां का जो गवर्नमेंट है टूरिज्म का, उन्होंने गाड़ी के आगे पायलट गाड़ी है, उसके पीछे आगे पुलिस और उसके पीछे नेटसप के लोग जा रहे थे, पूरा रास्ता फ्री। और ऐसे एक स्टाइल में सारे लोगों को हम लोग मतलब वो जो गवर्नमेंट है हमें उस होटल तक लेकर गया था। तो उस टाइम पे बस सिर्फ 3,000 लोग थे, अभी तो 10,000 लोग हैं, और 10,000 लोग वो भी दुबई में। तो सोचो कितना भारी वाला नजारा आने वाले समय में हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलने वाला है। और एक बात जो आज तक नेटसप के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, जो पहली बार होने जा रहा है, वो बात यह है कि दोस्तों अभी तक इंटरनेशनल टूर सबके लिए ओपन रहता था, और अचीवमेंट करने के बाद जब भी बात आती थी
विथ फैमिली जाने के लिए, विथ फैमिली अचीवमेंट करके जाने के लिए, तो वो मौका हमेशा 20 साल में वो मौका हमेशा स्टार एंड अबव लोगों के लिए ही रहता था। मतलब अगर कोई बिगिनर है, लाइटनिंग स्टार है, उसने कितना भी टारगेट किया तो उसे सिंगल जाने के लिए परमिशन रहता था। विथ फैमिली अगर जाना है तो बेयर मिनिमम स्टार क्लब में आना बहुत जरूरी था। लेकिन इस साल पहली बार सुजीत सर ने ये भी मौका हमें दिया है कि कोई बिगिनर, कोई लाइटनिंग स्टार अगर दोबारा अचीव करके विथ फैमिली जाना चाहते हैं तो उसका 100% वेलकम है। तो फिर से मैं चाहूंगा हमारे सुजीत सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इतने एक से बढ़कर एक मौके आज तक हमें नेट्सअप में किसी ने दिए नहीं थे। तो दोस्तों चलो, जिनका रह गया उन लोगों के लिए तो ये एक अचीव करके जाने के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नेट्सअप ने दी है। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज, और एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी नेट्सअप देने जा रहा है। बहुत बढ़िया सरप्राइज हम लोगों को नेट्सअप दे रहा है। सरप्राइज ये है कि हमारे हेल्थ सेगमेंट के नेचुरम और रेंज के जो ब्रांड एम्बेसडर है करीना और सैफ अली खान, ये जो है करीना कपूर और सैफ अली खान, ये हमारे साथ 3 दिन दुबई में रहने वाले हैं, वो हमारे साथ आने वाले हैं। तो सोचिए, बड़े बहुत बार हम लोग सोचते हैं यार ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं इनका रहने का स्टाइल कैसा था, बातें कैसे करती है, कैसे एक दूसरे के साथ, सारी बातें मतलब उनके बारे में कई सारी हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो ये सारे लोगों के साथ दोस्तों हम 3 दिन, ये जो लोग इनके साथ 3 दिन हम रहेंगे, उनके साथ फोटो खींचने वाले, अलग 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 एक्टिविटीज में वो हमें पार्टिसिपेट करने वाले। तो मतलब ये बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट जो है हमारे लगभग 10,000 लोगों का दुबई में होने वाला है। तो ये जो फोटोग्राफ्स, ये जो वीडियो हम लोग निकालेंगे, हमारे लिए लाइफ टाइम मेमोरीज हमारे पास होने वाली है। तो चलो दोस्तों, थोड़ा सा दुबई के बारे में हम लोग बात करते हैं। सर आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है ना? आवाज वगैरह ठीक आ रहा है सर? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। हाँ चलो, मेरा वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा है सर, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। आ रहा है जा रहा है, ओके ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो टेक्निकल इशू रहेगा। ठीक है चलो, इसको अभी हम लोग कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, चलो दुबई तो जाना है तो दुबई के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लोग। दुबई जो शहर है, जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख में दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में आज दुबई का नाम लिया जाता है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पावर अगर है और इसी के साथ साथ अगर एटीट्यूड स्ट्रांग है तो एक कंट्री क्या कर सकती है, इसका बहुत ही बेहतरीन मिसाल अगर कोई है तो दैट इज दुबई। दोस्तों दुबई का एटीट्यूड ये है कि पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा है, जो सबसे भारी है, वो हमारे पास होना चाहिए, और हमारे पास जो है वो इतना भारी होना चाहिए कि पूरी दुनिया से हमारा सबसे भारी वाला, एक नंबर वाला हमारे पास होना चाहिए। और इसी एटीट्यूड के साथ हर एक फील्ड में वो लोग कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 4 साल पहले की बात है। मतलब दूसरी तीसरी बार जब मैं दुबई गया था उस टाइम की बात है, 4 साल लगभग हो गए होंगे। तो उस समय हमारा जो गाइड था, गाइड ने हमें बताया कि सर इस साल ऐसी बातें हो रही थी दुबई के बारे में। तो उसने एक चौंकाने वाली बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसने कहा सर इस साल दुबई में पूरे दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग बनाने वाले जो क्रेन्स होते हैं ना, क्रेन्स, तो पूरी दुनिया के लगभग 62% क्रेन्स इस साल सिर्फ और सिर्फ दुबई में काम कर रहे हैं। मतलब उनका कितना बड़ा प्लानिंग, कितना बड़ा कुछ धमाका पूरे हिसाब से चल रहा है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से दुबई लगातार जो जो टूरिस्ट लोग हैं इनका एक अट्रैक्शन बनते हुए आगे आगे बढ़ रहा है। चलो दुबई के बारे में, दुबई का नाम निकलता है तो सबसे पहले सामने आता है, वो आता है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा मतलब आज की तारीख में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, पूरी दुनिया की, इससे ऊंचा आज की तारीख में आज तक दुनिया में कुछ नहीं है। तो ये जो बुर्ज खलीफा है इसकी ऊंचाई है लगभग 828 मीटर, मतलब 2716 फुट। मतलब कितना हुआ, चलो हम देखते हैं। हमारा घर जो है, हमारे घर में हम रहते हैं, उसका जो स्लैब आता है वो 10 फीट पे आता है, 10 फीट पे। तो 2017 से 2716 मतलब कितना हुआ, तो 271 मंजिला बिल्डिंग, 271 मंजिला बिल्डिंग, इतना बड़ा ये टावर तक, मतलब बॉटम से लेके ऊपर तक जाएंगे तो 271 मंजिला बिल्डिंग हम सोच भी नहीं सकते हैं। 10 मंजिला, 20 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला देखेंगे तो शायद सर पे टोपी भी नहीं रहेगी। और ये 271 मंजिला, तो इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है, किसी भी टाइप का कैमरा हो, कैसा भी कैमरा हो, पूरी बिल्डिंग आप एक फोटो में ले ही नहीं सकते हैं।
तो ऐसी जो बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग, वो देखने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 100%। और जाने के लिए एक छोटा सा टारगेट दिया है, कितना है? 2,75,000, 2,75,000। एक छोटा सा टारगेट अगर हम अचीव करते हैं तो हम एरोप्लेन में जाएंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे, दुबई में एंट्री करेंगे, और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है, इसके पास भी हम जाएंगे। इस बिल्डिंग की खासियत ये है, 160 स्टोरीज तक हमें जाने के लिए परमिशन है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा, ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है तो इसका फाउंडेशन भी बहुत बड़ा है। तो कितना बड़ा है? तो दुनिया की सबसे एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है कि जिसका मतलब सिंगल बिल्डिंग के लिए जो फाउंडेशन है, आज तक की दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन इस बिल्डिंग का है। यहाँ पे और एक चीज जो बहुत मायने रखते हैं, जहाँ पे आपको हमें सबको जाना है, वो है यहाँ का ऑब्जर्वेशन डेक। मतलब इस बिल्डिंग में जाने के बाद, कुछ हाइट पे जाने का, बहुत बड़ी हाइट है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, वहां पे जाने के बाद वहां से हम पूरी दुबई को देखने वाले हैं, पूरी दुबई को वहां से देखने वाले, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन डेक। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ पे हम जाके हमारा खुद का सेल्फी खींचेंगे, हमारे दोस्तों को वीडियो वगैरह भेजेंगे। मतलब ये हमारे लिए और हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को जलाने के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका हमें मिलने वाला है। इसी के साथ साथ इस बिल्डिंग की एक सबसे बड़ी खासियत अगर कोई है तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट, सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट। अभी देखिए, इतनी ऊंचाई पे जाना है, तो ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट, इस लिफ्ट के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये जो लिफ्ट है कितने स्पीड में जाती है? देखिए, हमारे यहाँ पे 5 मंजिला जाना है, 10 मंजिला जाना है, 20 मंजिला जाना है, कितना टाइम लगता है? और यहाँ पे इतने ऊंचाई पे जाना है, तो इस लिफ्ट की खासियत मैं आपको बोलता हूँ। ये मैं आपको जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-3 बार मैंने बार-बार इसमें से ट्रैवल किया है। वो बच्चे को कैसे लगता है कि बार-बार वो एन्जॉय करे? तो ये एन्जॉय करने लायक चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ैक्टली ये क्या हुआ। तो ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर जैसे हम लोग जाते हैं, लगभग 25-30 लोग एट ए टाइम खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही दरवाजा बंद होता है ना लिफ्ट का, म्यूजिक स्टार्ट होता है, और दरवाजे के ऊपर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की घड़ी लगी हुई है। और जैसे ही बटन स्टार्ट होता है, लिफ्ट शुरू होती है, तो वहां पे घड़ी स्टार्ट हो जाती है, और कुछ ही सेकंड में, मतलब समझने के पहले ही हमारे दोनों कान अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है हम बहुत सारी ऊंचाई पे पहुंच गए। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, घड़ी देखिए, टाइम आता है सिर्फ 62 सेकंड। मतलब जस्ट 1 मिनट में इतने ऊंचाई पे लेकर जाने का काम ये लिफ्ट करती है। जैसे दरवाजा खुलता है ना दोस्तों, तो दरवाजा खुलने के बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पे। इसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ पे हम सब लोग एंजॉय करने के लिए जाने वाले। यहाँ से पूरा दुबई चारों ओर से दिखता है। अभी देखिए आप वहां से 10, 20, 30, 40, 50 मंजिला बिल्डिंग कितनी छोटी दिखती है इस लेवल से। तो ऐसे लेवल पे जाके जब हम फोटो खींचेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचेस्ट सेल्फी अपने खुद के लिए, वो अपना व्हाट्सएप तो फ्री है ही, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेजने के लिए यहाँ से काफी कुछ मेमोरीज आपके पास आने वाली है। और यही अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, बीवी के साथ जाते हो, तो और मजा आपके लिए आने वाला है। तो यहाँ पे डेक पे कई सारी चीजें, चारों एंगल से 360 डिग्री आप पूरा दुबई यहाँ से देख सकते हो। ये दुबई का सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा पॉइंट है जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इससे भी ऊपर जो बिजनेसमैन है उनके लिए और एक ऊपर दूसरा ऑब्जर्वेशन डेक है। दूसरी और एक बात है, जैसे मैंने कहा कि दुबई की खासियत है, जो दुनिया में सबसे भारी, वो हमारे पास होना चाहिए। तो दुनिया में समंदर के नीचे कैसे रहता है, समंदर के नीचे ये जीव सृष्टि कैसी रहती है, ये टोटल समंदर के नीचे कैसे चलता है सब कुछ, ये नजदीकी से देखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एरिया बनाया है। ये ऐसे हाफ राउंड सर्कल में ग्लास है बहुत बड़ा, और उसके यहीं पे पूरा समंदर भी बोल सकते हैं आप, इतना बड़ा समंदर, इसके अंदर हम लोग ग्लास के अंदर से जाएंगे। मतलब 1-1.5 फीट से हम लोग बड़े बड़े 5-5, 10-10, 20-20 फीट वाले फिश हम सिर्फ 2 फीट से देख सकते हैं। मतलब हमारे और उनके बीच में सिर्फ ग्लास रहती है। यहाँ पे डाइवर्स भी आप देख रहे हो, मतलब जो उनके साथ फीडिंग वगैरह वो काम करते हैं, इसके छोटे छोटे शोज रहते हैं। ये शो बहुत ही बेहतरीन होता है, मतलब देखने लायक चीज है, जिसके साथ खड़े रह के हम फोटो खींच सकते हैं, वीडियो निकालेंगे हमारे लिए भी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फील है ना, मतलब ये एक्चुअली क्या है बताने के बजाय, ये थोड़ा एक्सपीरियंस लेने की चीज है। और उसके लिए टारगेट कितना है? सिर्फ 275 टारगेट अगर हम करते हैं, तो ये सारी चीजें हम फ्री में यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितने अलग अलग टाइप के फिश यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कितना बड़ा फिश है, मतलब अगर इंसान की हाइट एवरेज 5 फीट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 15 से 20 फीट, और इससे भी बहुत बड़े बड़े फिश वहां पे है। और ये जो
जहाँ पे हम लोग जाने वाले अंडर वाटर के हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पे ये जो पूरा वर्ल्ड कैसे है, इसको अगर देखना है तो ये देखने के लिए दुबई ने सबसे बढ़िया, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया ऐसा ये प्रोजेक्ट बनाया है। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ और एक दुबई का नाम निकलता है तो इस होटल का नाम तो आता ही है। इसका नाम है बुर्ज अल अरब। यह होटल दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल है। इससे महंगा पूरी दुनिया में दूसरा कोई होटल नहीं है। यह होटल आप ऊपर जितना देख रहे हो उससे ज्यादा वो पानी के नीचे है। इस होटल की खासियत यह है, यह होटल इतना रिच है, इतना रिच है, इतना रिच है कि इस होटल में जो भी रूम बुक करते हैं वो दुबई एयरपोर्ट पे उतरने के बाद सीधा हेलीकॉप्टर से उनको लेके आता है। और आप ऊपर अगर देखोगे तो वहां पे हेलीकॉप्टर उतरने के लिए वहां पे 3 हेलीपैड ऊपर बनाए गए हैं, जहां पे हेलीकॉप्टर उतारा जाता है। जो बाय रोड आना चाहते हैं उनके लिए दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, जैसे रोल्स राइस कहा जाता है, ऐसे कई सारे रोल्स राइस है जिसके माध्यम से ये जो है ये होटल तक पहुंच सकते हैं। तो ये होटल मतलब पैसा कितना है, मतलब ये रिचनेस या क्या होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे गोल्ड जो है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम तोले पे बात करते हैं, यहाँ पे पूरी दीवारें सोने की है, पूरी दीवार की दीवारें सोने की है। होटल इतना महंगा, इतना रिच है कि चाय जो पीते हैं ना, उसका चाय हिलाने का चम्मच भी सोने का होता है, ग्लास भी सोने का होता है, चाय जिसमें पीते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस होटल में हम लोग जाने वाले नहीं है, लेकिन लेकिन इस होटल के पहले बाजू में हम इसके साथ फोटो खींचने वाले हैं। क्योंकि ये जो होटल है जिसके बारे में बता रहा हूँ ना, ये होटल दुबई का आइकॉनिक बिल्डिंग है। मतलब इसके साथ फोटो होना मतलब, ये जो दुबई में आप जाते हो तो जैसे हम लोगों को पता है एक शेर और उसके मुंह से पानी आता है तो ये मतलब सिंगापुर कहा जाता है। तो ऐसे दुबई के लिए एक बहुत ही भारी, और आने वाले समय में हम नेटवर्क के माध्यम से सब लोग इतना पैसा खींचने वाले हैं, कभी ना कभी यार इस होटल में हम लोग तो जाके ही रहेंगे 100%। ये तो कुछ सोना क्या होता है, कितना सोना ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ ये एक खेल बहुत ही बढ़िया खेल है, और इस खेल के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, ये दुबई जो है ना, किसी भी हाल में कुछ भी करके आपको अचीव करना है। ये जो खेल इसे कहा जाता है डेजर्ट सफारी। मतलब एक दिन हम लोग दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे डेजर्ट में जाएंगे। वहां पे चारों ओर रेती, क्योंकि दुबई में जमीन बहुत कम है, जो भी है रेती 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 है। और रेती के बहुत बड़े बड़े टीले, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो है, जैसे पत्थर के होते हैं वैसे रेती के बहुत बड़े बड़े टीले हैं यहाँ पे। तो एक खेल बना है पूरी दुनिया में, दुबई में एकमात्र ऐसा सबसे भारी वाला खेल। इसका डुप्लीकेशन कॉपी एक दो कंट्री ने बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे भारी, इतना बड़ा कहीं पे भी नहीं। अब ये बहुत ही भारी है। तो ये खेल ऐसा है कि ये जो गाड़ियां आप देख रहे हो, दुनिया की एकमात्र ऐसी गाड़ी है कि जो रेती के टीले पे ऐसे सीधा चढ़ सकती है। रेती मतलब अगर हम हाथ से निकालेंगे तो आराम से रेती निकलती है, लेकिन ऐसे रेती पे कई सारी ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे ये गाड़ियां चढ़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद टायर की हवा आधी निकाली जाती है, हम लोग आगे बैठते, 2 लोग आगे 2 लोग पीछे, और ये गाड़ी निकलती है रीति के पहाड़ की तरफ। और यहाँ से शुरू होता है खेल, जो लगभग 25 से 30 मिनट का होता है। लोग कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो ये जो एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन खेल ये है। मतलब 20-25 मिनट आप मतलब सांसें जो है ना, कंटिन्यूसली आप सांसें रोक के रखेंगे। मैंने 2-3 बार इसका एक्सपीरियंस लिया, बहुत ही भारी खेल है। अब यहाँ पे देखिए रेती का ये है, वहां से इतनी ऊंचाई पे गाड़ियां नीचे उतरती है, ऐसे ही गाड़ियां ऊपर चढ़ती है, कहीं पे रास्ता नहीं दिख रहा है वहीं पे गाड़ी। अभी राइट साइड पे अगर आप देखोगे, रेती इतनी ज्यादा निकल रही है कि पूरी गाड़ी कवर हो गई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। हमें लगता है हो गया कार्यक्रम अभी, लेकिन इतने सालों में आज तक एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस मैं तो चाहूंगा लेना ही चाहिए। जो हम लोग ऐड देखते हैं ना, डर के आगे जीते, तो ये सच में अंदर बैठने के बाद एक समय ऐसा आता है या सब सांसें रोक के बैठे, और उसके बाद ये जो जैसे ये खेल खत्म हो जाता है, बहुत मजा इसका आता है, बहुत मजा आता है। देखिए आप देखोगे रास्ता ही नहीं है, फिर भी ये लोग ऊपर ऊपर गाड़ियां इतनी ऊंचाई तक कैसे लेके जाते हैं, मतलब हम पहले देखेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, इसको अगर करना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए छोटा सा टारगेट आप लोगों को दिया है, 275 275। उस टारगेट को हमें भूलना नहीं है। वही उसी टाइम पे राइट साइड पे आप देखो, मोटरसाइकिल 4 पहिए वाला जो रेगिस्तान में यहाँ पे मतलब रेती के ऊपर ये चलती है। तो ये भी एक खेल है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, मजा कर सकते हो, क्योंकि शाम के 2-2.5 घंटे हमारे पास है इस सारे इंजॉयमेंट के लिए। और उसके बाद आता है ये फाउंटेन, जहाँ पे दुबई के सबसे, मतलब आज तक का दुबई का मतलब पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे फाउंटेन, ये
पानी के फाउंटेन दुबई में बहुत ज्यादा फेमस है, इसका भी शो है। ये जो हम लोग बुर्ज खलीफा है उसी के बाजू में है, और हम जिस होटल में रहने वाले हैं, मैं बाद में उसके ऊपर आता हूँ, उस होटल से बहुत ही नजदीक है। तो ये जो फाउंटेन है इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, 550 फीट, मतलब 55 मंजिला बिल्डिंग जो होती है, 55 मंजिला बिल्डिंग, इतनी ऊंचाई तक ये पानी का जो हाइट है, ये हाइट जाता है। और यहाँ उस हाइट तक कितना, तो टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे लगभग 950 फीट तक ये पानी एट ए टाइम 550 फीट तक उठाया जाता है। इसके लिए दुनिया के सबसे पावरफुल पंप, पावरफुल प्रोजेक्टर, पावरफुल लाइट्स इसका इस्तेमाल किया है। ये दुनिया में मतलब बहुत दूर दूर से लोग इस शो को देखने के लिए आते हैं, और ये हम लोग कई बार देख सकते हैं क्योंकि हम रहेंगे ही ऐसे होटल में जहां से बहुत नजदीक है। और लास्ट में आता है दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया, मतलब ये दुबई टूर का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट भी आप बोल सकते हो। ये है कि पुराने जो मतलब ये जो दुबई वाले लोग हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, शेख लोग जो है इनके पास इतना पैसा है, तो ये लोग लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं, इनका जिंदगी जीने का तरीका कैसा है। तो ये तरीका, वो जो लाइफस्टाइल है, एक दिन हम लोग जिएंगे लगभग 4 से 5 घंटे, मतलब जिस दिन हम लोग वो डेजर्ट सफारी में वो टीले के ऊपर चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, उसके बाद हम लोग आने वाले हैं यहाँ पे मैदान में, मतलब रेगिस्तान में, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टेज बनाया होता है। और उसके आगे ये जो मतलब पुराने जमाने में या अभी भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो शेख लोग हैं, उन लोगों की जिंदगी जीने का तरीका ऐसे होता है कि सामने उनके ट्रेडिशनल डांसेस चलते हैं, जेंट्स लेडीज डांस करते हैं, और उसके बाजू में बैठने के लिए तकिया, बैठ के ऐसा मतलब लोड, बाद में राइट साइड पे अगर आप ऊपर देखोगे तो हुक्का वगैरह, मस्त गुड़गुड़ी वगैरह, इसका एंजॉय करते करते बाजू में साथ में खाना खाने के लिए बारबेक्यू वगैरह, ये सारा बहुत मजेदार खेल होता है। और ये सारा लाइफस्टाइल नेटसप ने हमें एज इट इज दिया है, जिसका हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो उस शाम का मैं आपको बोलता हूँ, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन मुझे वो दिन याद आ रहा है, मतलब महसूस करने वाली चीज है, बहुत बढ़िया। शाम का समय होता है, बहुत मस्त ठंडी हवा, एटमॉस्फेयर इतना भारी, और ऐसे एटमॉस्फेयर पे आप बैठे हो, अ, जो बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती है जिसका एंजॉय आप गुड़गुड़ा वगैरह वगैरह, हुक्का वगैरह, जो सारा कुछ है जिसको इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो ले, क्योंकि उनके कल्चर में वो है, वो आपको मिलता है, आपको लेना है तो उसका फायदा उठा सकते हो। खाना खाने के लिए वेज नॉन वेज भी कई सारी बातें वहां पे होती है, और इसी के साथ साथ सामने डांस चलते हैं। तो ये जो रिचेस्ट लाइफस्टाइल क्या होती है, इसका भी एंजॉय आप 4 घंटे लेने वाले हो। इसी के बाद उनके जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है पहन के हम लोग फोटो भी खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा कि दुबई का जो टूर है ये बहुत अल्टीमेट टूर होने वाला, कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग करने के जाने वाले हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये दुबई में जमीन कम है, तो उन्होंने समंदर में एक बहुत ही बढ़िया एक ऐसा एरिया बनाना है, पाम टी जैसे आप अगर ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा एरिया बना है जहाँ पे ये लोग जो है, मतलब जमीन कम है तो यहाँ पे भी उन्होंने डेवलपमेंट किया। और ये होटल अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। अब ये फोटो देख के आपको क्या समझ में आता है, जिस होटल में हम लोग रहने वाले, इस होटल की ऊंचाई कितनी है, कैसी है, मतलब कई बार ये जो होटल है इस हिसाब से बादलों में ढका जाता है, ऐसे होटल में हम लोग रहने वाले हैं। इस होटल के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हम सबको पता है कि हमारे कई सारे प्रोग्राम्स 5 स्टार होटल्स में कंटिन्यूसली होते हैं, मेरियट में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। मेरियट में सबसे भारी मेरियट अगर कोई तो दैट इज JW मेरियट, जो इंडिया में ऐसे 3-4 होटल है JW मेरियट के। और इसी के साथ इसमें सबसे भारी वाला कौन सा है, दैट इज मार्क्यूस, जो दुबई में है। तो ये जो होटल है जहाँ पे हम लोग रुकेंगे 3 रातें यहाँ पे, तो ये होटल मार्क्यूस जो है दुबई के डाउनटाउन में, द हार्ट ऑफ द सिटी, एक ऐसा एरिया जहाँ पे होटल है। और आप गूगल पे भी सर्च करो, पता चलेगा ये मार्क्यूस होटल कितना महंगा है, कितना कॉस्टलीएस्ट है। इस होटल की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये दुनिया का टॉलेस्ट 5 स्टार होटल है। मतलब ये सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है पूरी दुनिया में, ऊंचाई वाला। नहीं तो बाकी 5 स्टार होटल में ऑफिसेस वगैरह बाकी कमर्शियल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ होटल है जहाँ पे 1608 रूम है, और जहाँ पे लगभग 82 फ्लोर तक हम जा सकते हैं। 19 बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स उस होटल में हैं। इतनी बड़ी होटल यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों, लगभग सोचो 10,000 के आसपास लोग हम जब यहाँ से निकलेंगे जाएंगे ऐसे होटल में। इस होटल का मैं जस्ट आपको, आप गूगल पे सर्च भी करो तो पता चलेगा, सिर्फ ब्रेकफास्ट भी करते हैं तो लगभग 8,000 रुपए का खर्चा आता है ब्रेकफास्ट के लिए।
तो खाने के लिए कितना रहेगा, रहने के लिए कितना खर्चा रहेगा। तो नेटसब एक आदमी के पीछे कितना सारा पैसा खर्च कर रहा है, मतलब नेटसब इस ग्रैंड ईयर में कितना सारा करोड़ों रुपया डालने वाला है, ये आपके समझ में आएगा। तो ये जो सारी बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि हर एक का सपना होता है कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, एंजॉय करना है, ऊपर से नीचे दुनिया देखना है, अलग कंट्री देखना है, और यहाँ पे कई सारी बाकी चीजें हैं। ये सारा एक्सपीरियंस अगर हमें लेना है तो छोटा सा हमारा जो टारगेट है 275 वो हमें करना पड़ेगा। ये दिन में अगर आप देखते हो तो इस हिसाब से ये होटल है, बहुत बड़ा होटल है। इसका फोटो आधा ही आया है। लेफ्ट साइड पे आप देखो बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। हम जिस होटल में रहेंगे वहां से ये बुर्ज खलीफा बहुत नजदीक है। जितनी बार चाहे हम लोग वहां पे जा सकते हैं, उसके फाउंटेन शो को हम लोग देख सकते हैं। जिस होटल में हम लोग रुकने वाले हैं उस होटल के रूम्स अभी ऊपर देखिए, यहाँ विंडो से अगर आप देखते हो तो बाहर सब दुबई है। तो दुबई की कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कितनी छोटी दिख रही है, तो मतलब हम कितनी ऊंचाई पे इस होटल पे रहने वाले हैं। ये एक एक्सपीरियंस है। और इसके लिए देखिए, हमें 1 रुपया खर्च नहीं करना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाते समय आपके खिस्से में अगर 1 रुपया है तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपका 1 रुपया वैसा ही रहेगा। पूरा खर्चा नेटसब करता है, पूरा खर्चा नेटसब करता है। शॉपिंग वगैरह करना है तो आपको पैसा लेके जाना है। कहने का मतलब ये है कि नेटसब पूरी जिम्मेदारी उठाता है, पूरा एंजॉय हमें देने वाला है, पूरी लाइफस्टाइल हमें मिलने वाली है, पूरा एडवेंचरस जो पूरा जो खेल वगैरह ये सारे, ये सब कुछ नेटसब हमें देने वाला है। ये दुबई टूर पूरा जो है नेटसब हमें काम से करवाने वाला है। सिर्फ हमें हमारा छोटा सा टारगेट हमें पूरा करना है। अब यहाँ पे अगर जाना है, दुबई जाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो टारगेट है, उस टारगेट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं? चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे ये जो दुबई का टारगेट हमें अचीव करना है, तो इस टारगेट के लिए मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाया है। मैं ये कैलकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मेरे दिमाग में आया हुआ कैलकुलेशन, शायद आपने कुछ अलग सोचा होगा, आप आपके हिसाब से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैंने दिया है कि देखिए, कोई एक आधी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अभी गुजरात में बात कर रहा हूँ, नहीं तो बाकी जगह पे होती तो मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा हाथी है और ये हाथी आपको खाना है, तो आप कैसे खाएंगे? तो हम सोचेंगे बाप रे, इतना बड़ा हाथी कैसे खा सकते हैं? लेकिन उसके अगर छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो खाना शुरू करेंगे, तो कभी तो एक दिन या पूरा हाथी खत्म होने वाला है। वैसे ये जो हमारा टारगेट है ना, टारगेट कितना है? सिर्फ 275। इतना कम टारगेट आज तक 20 साल में इंटरनेशनल के लिए कभी भी नहीं था, सिर्फ 275। इस टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है, उसको भी हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में अगर हम डिवाइड करते हैं और 6 टुकड़े में अगर इसको कंप्लीट करेंगे, तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि कब हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो उसे कंप्लीट करने के लिए कैसे कर सकते हैं? चलो एग्जांपल लेते हैं। अप्रैल का पहला साइकिल हमारा चल रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो एकदम बिगिनर है, नया व्यक्ति है, उसने भी अगर ठान लिया कि चलो मुझे दुबई जाना है किसी भी हाल में, तो वो भी आसानी से 3 महीने में कंप्लीट कर सकता है। कैसे? तो चलो उसने सोचा कि मुझे करना है, तो उसे लेफ्ट साइड से 2 और राइट साइड से 2 लॉग इन करना है। मतलब 2 और 2 4 लॉग इन करना है। कितने रुपए के? तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 40, कितने भी रुपए के लॉग इन कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया, सिर्फ 6,000 रुपए की भी लॉग इन आप निकालते हो, 6,000 के, तो 2 लॉग इन लेफ्ट साइड पे, 2 लॉग इन राइट साइड पे, तो 12,000 का टर्नर हुआ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये करना है इसी अप्रैल महीने में, वो ये है कि रीपरचेज जो है हमें 5,000 का, वो इसी साइकिल में करना है। क्यों? क्योंकि टारगेट के चक्कर में बाद में टारगेट हो जाएगा, गलती से हमारा सेल्फ रिपर्चेस रह जाएगा। इसलिए इसी साइकिल में सेल्फ रिपर्चेस जो है 5,000 का, ये सिर्फ सेल्फ रिपर्चेस हमें किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। तो चलो अप्रैल का पहले साइकिल में 2 लॉग इन किया। अप्रैल के सेकंड साइकिल में क्या हुआ? अभी लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे 2 नए, 4 लोग हमारे पास है। अब ये 2 लोग है, इनके माध्यम से, इनका इस्तेमाल करके, इनके माध्यम से, इनकी हेल्प से हमें सिर्फ 5-5 नए लोग लाना है, 15 दिन में 5-5। उसके लिए हमारे पास कितने लोग हैं? लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे 2, उनका लिस्ट निकालो, उनके माध्यम से 5-5 नए लॉगिन करते हैं, तो 30-30 हजार का टर्नओवर आता है। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ दोस्तों? तो आपका हो गया L1, मतलब आप CS में आपका L1 कंप्लीट हो गया। अभी चलो चालू हो गया मई का पहला साइकिल। तो मई के पहले साइकिल में आपको क्या करना है? ये जो 5-5 लोग नए आए हैं, पहले 2-2 और ये नए 5-5 लोग आए, ये 5-5 लोगों के सहायता से नए 7-7 लोगों का लॉगिन करना है। टोटल 7 लेफ्ट साइड में, टोटल 7 राइट साइड में, और इसके लिए 5-5 लोग आपके पास है। मतलब काम एकदम आसान है, सिर्फ लिस्ट निकालना है,
नीश बनाना है और उनके गेस्ट कवर करते करते, और गेस्ट कवर करने के लिए कई सारे रास्ते हमारे सामने हैं, कई सारे हैं। 1-to-1 कर सकते हो, होम मीटिंग कर सकते हो, वेबिनार्स कई सारे चल रहे हैं। हर संडे मैं खुद भी वेबिनार लेता हूँ। आपके सीनियर जो है उनके भी वेबिनार चलते हैं। गेस्ट कवरिंग एक्टिविटी के लिए कई सारा सपोर्ट आप लोगों के, सिर्फ आपके दिमाग में एक होना चाहिए कि अभी मैं का पहला साइकिल चालू हुआ तो अभी मुझे क्या करना है, इधर 7 लॉगिन, इधर 7 लॉगिन होना ही चाहिए। 42,000 अभी मे का सेकंड साइकिल जैसे ही आता है दोस्तों, ये नए 7-7 लोगों की वजह से नए 9-9 लोगों का अगर लॉगिन होता है तो टोटल आता है 54,000। मतलब हुआ क्या, तो हमारा L2 भी कंप्लीट हो गया। मतलब L1 पहले महीने में अप्रैल में L1 हो गया, मई में हमारा L2 भी कंप्लीट हो गया। हमारा टीम भी बराबर डेवलप होते जा रहा है। जून महीने में वही करेंगे, 9 लोगों के माध्यम से 11 नए लोगों का, और जून के सेकंड साइकिल में उन्हीं 11 लोगों के माध्यम से नए 12 लोगों का। इस चक्कर में क्या होगा, तो हमारा टोटल जो टर्नओवर है ये लगभग 2,76,000 2,76,000 हो जाता है। अभी ये तो हमने एकदम प्लेनली कैलकुलेशन किया। रिपर्चेस कितने लोग करेंगे वो एक्स्ट्रा आएगा, कितने सारे लोग कोशिश करेंगे अलग से, वो टर्नओवर अलग आएगा। हमारे पास एक ऐसा टूल अभी आने वाले कुछ ही दिनों में, शायद 2-4 दिनों में आपके ग्रुप पे मैसेज आएगा। इटेलर नाम का कंसेप्ट एक बहुत ही बढ़िया टूल है जिसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। वहां से आने वाला टर्नओवर अलग रहेगा। मतलब ये जो 2,76,000 ये किसी भी हाल में 1,001% आपका कंप्लीट होने वाला है, जिसके चक्कर में आपके लेफ्ट साइड पे 46 लोग, राइट साइड पे 46 लोग। अभी हुआ क्या, आपका हो गया क्लब नेट्सअप दुबई। लेकिन सिर्फ क्लब नेट्सअप दुबई नहीं हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हो गई दोस्तों। बड़ी बात ये हो गई कि आपके लेफ्ट और राइट में आपका एक परफेक्ट टीम बन गया, जिसको लेके जुलाई में आप फास्ट ट्रैक में एंट्री करने वाले हो। आपका फास्ट ट्रैक में एंट्री होने वाला है, और फास्ट ट्रैक में एंट्री करने के लिए अगर आपके पास इतना बढ़िया टीम है तो आप अकेले नहीं, आपके लेफ्ट राइट से भी लोग आप ही के साथ फास्ट ट्रैक में एंट्री करेंगे। और जैसे ही आप फास्ट ट्रैक में एंट्री करोगे, वहां से आपका काउंटडाउन शुरू होने वाला है 1,000 दिन का। और जैसे रविकांत सर हमेशा बोलते हैं कि 1,000 दिन में अगर नेट्सअप ने जैसे बताया उस हिसाब से अगर हम काम करते रहेंगे तो बराबर 1,000 दिन खत्म होने के बाद हर एक के अकाउंट में 1,13,00,000 रुपए तो जमा ही होने वाले हैं। मतलब सोचिए, ये जो दुबई है ना, ये सिर्फ दुबई नहीं है, ये दुबई आपका पूरा करियर सेट करने वाला एक प्लान है। मतलब ये जो 3 महीने हैं, ये आपकी पूरी अगली जिंदगी जो है, पूरा आपका अगला करियर जो है, आपके जो पूरे सपने जो आपने देखे हैं, यहाँ पे तो आपका दुबई का सपना पूरा होगा, फॉरेन टूर का सपना पूरा होगा, बाकी सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन मेन जो आप चाहते हो करियर, ये करियर का फाउंडेशन ये 3 महीने है। तो ये 3 महीने हमें किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, कैसे भी प्रॉब्लम आए, हमें हमारा ये जो छोटे-छोटे टुकड़े वाला कार्यक्रम बेयर मिनिमम उससे 100% उसी साइकिल में कंप्लीट अगर करते हैं, तो बिना भाग-दौड़ के हम 100% हमारा टारगेट अचीव करके आगे निकलेंगे। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है, आपका टारगेट अचीव हो, इसलिए नेट्सअप ने अलग-अलग टूल्स दिए हैं। जैसे मैंने कहा, नेट्सअप एवरीडे में इटेलर नाम का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है एक अकेला टूल 750 करोड़ का टर्नओवर देने में सक्षम है। इसके बारे में बाकी बाद में डिटेल होगी। वहीं पे हमारा कंप्लीट होने के लिए नेट्सअप ने हमें क्या किया है, हमें ऑफर्स भी दिए हैं। 12,000 रुपए में मिलने वाले हैं। मतलब नेट्सअप हमें टारगेट भी कम दे रहा है, नेट्सअप हमें पीरियड भी ज्यादा दे रहा है। इसी को कंप्लीट करने के लिए नेट्सअप हमें अलग अलग टूल्स भी दे रहा है। इसी के साथ साथ नेट्सअप हमें ऑफर भी दे रहा है। ये सारा करने के बाद फिर देखिए 3 महीने आगे जाके अगले 3 साल कितना जबरदस्त रंग लाने वाली है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सुजीत सर ने, फिर से मैं एक बार कहता हूँ, सुजीत सर ने जो हैदराबाद में भी कहा कि हम दुबई का इवेंट बहुत ग्रैंड करने वाले। ग्रैंड मतलब इतना ग्रैंड कि दोस्तों पिछले 20 साल में इतना बड़ा फंक्शन नहीं हुआ है। सोचो, 10,000 लोग इंडिया से दुबई जा रहे हैं, मार्केट जैसे होटल में रुक रहे हैं, दुबई में कितने सारे अलग अलग इवेंट्स है इसके लिए, और इसी के साथ साथ कितना सारा करोड़ों रुपए का बेनिफिट जो है
ये दुबई गवर्नमेंट को, दुबई टूरिज्म को मिलने वाला है। तो दुबई टूरिज्म भी नेटसॉप को कितने जबरदस्त तरीके से ट्रीट करने वाला है। ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ सुनने के बजाय मैं चाहूंगा थोड़ा आप महसूस करो, और वो जो टूर है दुबई का, वो आपकी जिंदगी में एक ऐसे यादगार टूर बना रहे। और अकेले नहीं जाना है, जिन जिन लोगों ने अचीवमेंट किया, हर एक व्यक्ति ने फिर से रिपीट करके फैमिली को ही साथ लेकर जाना है। तो दोस्तों बस जाते जाते इतना ही कहूंगा, सिर्फ सोचो मत दुबई ऐसा है, दुबई वैसा है, मैं जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सिर्फ सोचना नहीं है, हमें काम करना है, हमें अचीवमेंट की तरफ ध्यान देना है। तो मेरा आज का स्पीच यहीं पे खत्म करता हूँ, और आप सब लोगों के साथ मिलते हैं हम सब लोग दुबई में। और एक इंपॉर्टेंट बात जाते जाते कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अचीवमेंट करने के लिए जो भी जरूरत पड़े, पूरा रीजन, पूरा जोन आप लोगों के साथ खड़ा है। हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। आपको जो भी जरूरत पड़े, बस एक चीज है, मैंने शुरू में कहा था, हमने हाथ आगे किया है, आप हाथ आगे करिए। अगर दोनों हाथ एक साथ आते हैं तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे भी पूरे इंडिया में हम लोगों ने पिछले 3 साल से लगातार राज किया है। इस साल तो हमें खुन्नस में हाईएस्ट अचीवर कहां से आए, तो हमें निकालना है हमारे गुजरात से। हाईएस्ट टर्नओवर कहां से आया है, तो आया है गुजरात से। और हाईएस्ट पैसा जो है अलग अलग ऑफर्स के माध्यम से कहां पे छापा है लोगों ने, तो वो छापा है गुजरात में। तो गुजराती लोगों को व्यापार के बारे में बोलने की जरूरत है ही नहीं, उनके खून की बूंद बूंद में व्यापार बसा हुआ है। तो बस जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरा आज का स्पीच जो है यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं फेमिल सर को कंटिन्यू करने के लिए बोलूंगा। फेमिल सर। યસ થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ જ સારી મતલબ કે આપણે લોન્ચિંગ કર્યું, અને અહીં આપણે એક જ વસ્તુ આપણે બધાએ કમિટમેન્ટ લેવાનું છે કે આપણા દરેકનું દુબઈ અચીવમેન્ટ આપણું મેક્સ ટુ મેક્સ જૂન એન્ડ સુધીમાં આપણું પતી જાય. કારણ કે એપ્રિલ, મે અને જૂનનો ટાર્ગેટ રાખ્યો છે, અને દૈતુલે સરે જે કીધું એ મુજબ કે આપણે ટાર્ગેટને વધાર્યો નથી, કારણ કે કંપની પણ ઈચ્છે છે, સુજીત સર પણ ઈચ્છે છે કે આપણે મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ લોકો ત્યાં જઈએ. અને સ્પેશિયલી વાત કરું અહીં અમદાવાદ અને સુરત રિજનની, તો ઓલમોસ્ટ 210 અચીવર્સ છે. તો આ 210 અચીવર આપણા પાછા રિપીટ થાય, એની સાથે સાથે જ આપણે આજનું આ લોન્ચિંગ અહીં પૂરું કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ. અને આવતીકાલે ઓલરેડી રાજકોટ રિજનનું લોન્ચિંગ આપણે રાખ્યું છે. તો તમારી નીચેથી કોઈ આજે નહીં જોડાઈ શક્યું હોય, કારણ કે અત્યારે પણ મતલબ કે ઓલમોસ્ટ 1 કલાક થયો, અને અત્યારે પણ 996 લોકો અત્યાર સુધી આ પ્રોગ્રામમાં હાજર રહ્યા છે. માનો મતલબ કે હજુ પણ ઘણા બધા લોકો પ્રોગ્રામ અટેન્ડ નથી કરી શક્યા. તો કાલે ઓલરેડી બપોરે 2 વાગે આપણે રાજકોટ રિજનનો પ્રોગ્રામ છે. તો મારી દરેકને રિક્વેસ્ટ છે, જેને અટેન્ડ કર્યો છે એ નહીં આવે, તમારી નીચેથી કોઈનો અટેન્ડ કરવાનો બાકી રહી ગયો છે, તો એ લોકોને કાલના પ્રોગ્રામમાં બેસાડવા વિનંતી છે. થેન્ક યુ વન્સ અગેન. થેન્ક યુ સો મચ દૈતુલે સર.